इसमें से हम लोग कल देख रहे थे एंगुलर मेजरमेंट, तो लास्ट वाले स्लाइड्स में है पूरा ट्रांसपेरेंसी का जो पीपीटीज है उसमें था। तो ये वाले होते हैं स्लाइड जहाँ पे हम लोग पूरा स्टडी कर रहे थे। सो आई विल स्लाइटली मेक इट बिग। So last time we started angular measurement, from which the bevel protractor we saw. It was a simple bevel protractor. Here you can see this, and the same is shown here. You can see here. This is that knob. Initially, when this particular plate is parallel to this, means when this pointer is on 0, that time this is parallel here, means 0 degree. अभी आपको जो भी एंगल चाहिए वो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया में आपने कोई जॉब का 2 सरफेसेस लगाया है, इधर एक और इधर एक, तो आपको एंगल यहाँ पे मिलेगा अपोजिट एंगल थ्योरम के हिसाब से। और समझो यहाँ पे आपने लगाया, ये साइड में इधर एक सरफेस और दूसरा सरफेस ये साइड में है, तो आपको यहाँ पे एंगल मिलेगा। अकॉर्डिंगली यू कैन मेजर द एंगल बाय अपोजिट एंगल थ्योरम। जैसे यहाँ पे आप ऐसा जॉब का ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो आपको यहाँ पे वो एंगल मिल जाएगा। ऐसा अपोजिट एंगल थ्योरम से बेवेल प्रोट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। उसमें हमने देखा बेवेल प्रोट्रैक्टर में you have a universal bevel protractor where you have this circular scale along with vernier scale also. And if the optical mirror or optical lens is fitted along with this, it becomes optical bevel protractor. Now some optical bevel protractors are there which from the eyepiece you can see this all detail, this one, how much degree, how many minutes, like that also they are available, optical bevel protractor. And they are not digitalized basically. Dimensional the devices are digitized, angular are not digitized at present. And then we saw autocollimator earlier. Autocollimator principle, that while actually matches with target wire initially when the reflector is exactly perpendicular to this ray, and when it get tilts, then how the reflected rays is deflected by 2 theta. When reflector is tilted by theta, image is tilted by 2 theta. According to that reflection principle, this distance is calibrated in terms of the height difference between 2 points A and P of the reflector that we already studied. So that was about autocollimator. But autocollimator is included in angle measurement. Also, spirit level is also included in angle measurement, because basically it is measuring the slope. So slope is nothing but the slope here, taper. That's why it is considered under taper measurement. Though we have a chapter that application is straightness measurement, the instrument is coming under angular measuring devices. Autocollimator, spirit level, that also comes under angle measuring devices. Now you have this one, angle gauges. So just like slip gauges, you have angle gauges also. So how they look like? See, angle gauges are like this. Just like slip gauges, you can build the angle. देखो,
ये एक एंगल है, लेट अस से इट इज 20 डिग्री, ये एक एंगल है, ये 5 डिग्री. इफ यू बिल्ड दिस, if the upper side of the two, they are rung together, now this is the point, this is the surface against which here you can ring that, so you can build the dimension, means 20 degree plus 5. okay, और ये सब मिनट्स और सेकंड वाले हैं, ये मतलब तुम्हारे और एक्यूरेट है, ये आपको दिखते टाइम पैरेलली दिखेंगे, क्योंकि वो छोटा एंगल यानी आपको लगभग समझ में नहीं आएगा ना आंखों को, तो ये आपको एकदम पैरेलली दिखेंगे, लेकिन ये एंगल वाले स्लिप गेजेस है. कैसे है वो अवेलेबल, तो आपको दिखाते हैं. इफ यू गो टू योर दिस वन, द सेम स्लाइड इट इज देयर अर्लियर. various slip gauge combinations are available. हम यहाँ पे जाते हैं. यहाँ पे हमने दिखाया था ना, ये देखो, ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है. 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 डिग्री, 41 डिग्री, ये डिग्रीज में अवेलेबल है. मिनट्स में 1, 3, 9, 27 ऐसे अवेलेबल है. सेकंड्स में 3, 6, 18, 30 ऐसे अवेलेबल है. तो इससे आप लोग है ना इन बिटवीन कॉम्बिनेशन बिल्ड कर सकते हो. अभी 20 डिग्री कैसे बिल्ड करोगे आप 20 डिग्री कैसे बिल्ड करोगे? 27 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस 9 करेगा तो 18 हो जाएगा. हाँ, तो उसको 18 बाद में प्लस 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, और एक वाला जो है उसको उल्टा रब करना पड़ेगा तो 20 डिग्री हो जाएगा. बराबर है? हाँ, हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड 20 डिग्री कैसे बिल्ड करोगे आप? 27 माइनस 9 मतलब 9 उल्टा रखेंगे, 3 प्लस रखेंगे और एक उल्टा रखेंगे. ये उल्टा रखने का कैसा है कंसेप्ट? ये सब अभी टेबल पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ हमेशा. ऑनलाइन में मेरे ऊपर ही अन्याय हो रहा है अभी. ये कैसा कैसा एक्सप्लेन करने का बच्चों को, यही सब. अच्छा, मैं आपको एकदम सिंपल समझाता हूँ. जब ये एज और ये एज एक के साथ एक बिल्ड करोगे तो ये प्लस होगा या माइनस होगा बच्चों? टेल मी. हेलो, nobody is speaking. Are you getting the voice? हेलो. यस सर. हाँ, तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना बच्चों, कि ये डायमेंशन हमको बिल्ड करना है. जैसे स्लिप गेज हम बिल्ड करते हैं एक दूसरे के ऊपर एक रिंग करके, हाँ, 3 mm प्लस 1 पॉइंट सम mm लाइक दैट, वैसे एंगल भी बिल्ड किया जाता है. देखो, ये एक एंगल है. हाँ, अभी दोनों का कॉन्वर्जिंग एंड अगर एक साइड में तो वो सम होता है. समझा? मतलब ये 20 डिग्री, ये समझो आपका कितना था वो पहले. हाँ, आपका ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसा करेगा आप. मतलब ये बड़ा साइड और ये बड़ा साइड आपका कोइंसाइड होगा या रिंगिंग करने के बाद ऐसा, तो आपका ये एंगल प्लस प्लस होगा, दिस एंगल प्लस दिस होगा. अगर इसको हम, ये बड़ी साइड है इसकी, ये एंगल की, ये उल्टी साइड में रखेंगे और ये छोटी ये साइड में रखेंगे तो क्या होगा? ये एंगल से ये एंगल माइनस होगा. तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको हाउ टू बिल्ड एंगल गेजेस? हेलो, हाँ सर. समझ में आ रहा है ना? गुड. बाकी लोग भी बोलो जरा मुझे, मतलब मैं आगे जाऊं क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. आप लोग ऐसे चुप रहोगे ना, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझाए क्या नहीं. तो बाकी बच्चों जरा बोलो. हेलो. यस. ओके ओके, चलो ठीक. सो नाउ आई विल शो यू एंगल गेज सेट. ये देखो, ये एंगल गेज सेट में क्लोज एंगल से एकदम क्लोज एंगल है. ये दोनों सरफेस आपको स्लिप गेज के एकदम नजदीक ये दिखाई देंगे, क्लोज डायमेंशन.
और यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़े थोड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, हाँ? ऐसे बड़ा सेट है ये एक्चुअली, और यहाँ पे बढ़ते नजर आ रहे हैं एंगल्स। सो ये एंगल गेज सेट्स भी अवेलेबल है। अलोंग विथ दैट ये ऑब्टूस एंगल के लिए ये भी रहेगा आपको विशाल कोण, वी से इन मराठी। दिस इज द थिंग 90 डिग्री, और यहाँ पे और कोई आप समझो बिल्ड करोगे 27 डिग्री बिल्ड किया, सो 90 प्लस में नाउ तो यहाँ तो 180 प्लस 27 ऐसा हो जाएगा, है? आप ये बीच में लाओगे तो 45 डिग्री का भी आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन मिल जाएगा। सो लाइक दैट यू कैन बिल्ड any angle using this angle gauges. So these angle gauges are also angle measuring devices. Now we will go to angle decker. Angle decker is one very important devices. One of the important device. ये वाला मैं आपको दिखाता। ये ऑटो कॉलिमेटर में कैसा था ना, टारगेट वायर और टारगेट ग्रेटिक्यूल वी कैन से, और वो पहले जीरो रीडिंग के लिए मैच होता है, और बाद में जब रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट करता है रे, तो इट गोज टू आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड डिपेंडिंग अपॉन दैट प्लस और माइनस साइड एंगल, लाइक दैट यहाँ पे भी। बट दिस वाज फॉर व्हाट, वन कॉलिमेटिंग लेंस वाज देयर, collimating and projecting lens, that was known as autocollimator, and reflector was used for measuring the straightness of a long surface. But here angle decker is using the same principle of this reflector and target wire, but the purpose is different. It is not for straightness measurement of a long surface, but it is measurement of some angle using your standard, using your known standard. For example, this is the principle of angle decker. यहाँ से illuminated light है, हाँ? आप ऐसा यहाँ से illuminated light है, हाँ? ये ऐसा आएगा, यहाँ से collimating lens से आके तुम्हारे वर्कपीस पे गिरेगा, वापस आएगा और ये प्रिज्म से आपके टारगेट ग्रेटिक्यूल में आएगा। वो ग्रेटिक्यूल अगर वो ये सरफेस अगर जो सरफेस है ये बराबर अपने रेज को परपेंडिकुलर है, तो वो जो इमेज है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों जीरो को मैच रहेगा, मतलब। और समझो ये तुम्हारा वर्कपीस है, वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे टिल्ट हो जाएगा। वो कितने से टिल्ट हो जाएगा वो यहाँ पे जैसा मालूम पड़ता है वैसा सेम प्रिंसिपल है, लेकिन एप्लीकेशन अलग है। एप्लीकेशन कैसा है कि ये ऐसा एक स्टैंड रहता है, देखो ये ऐसा स्टैंड रहता है, और ये जो अरेंजमेंट है ना, ये पूरी सिलेंडर में रहती है। ये सिलेंडर में पूरी अरेंजमेंट है, देखो ये ऑप्टिकल अरेंजमेंट है ना, इधर मैं जो इससे दिखा रहा हूँ, ये पूरी ऐसी इस सिलेंडर में रहती है। तो यहाँ से ऐसा रे यहाँ पे आता है और वापस जाके वो वायर पे सेट होता है। अभी हमको समझो मेजर करना है ये वी का एंगल, ये जो वी ब्लॉक का ये एंगल है ना, ये एंगल कितना है ये हमको मेजर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, ये जो एंगल है वी का, ये वी ब्लॉक का ये जो एंगल है ना, ये एंगल एक रफ एंगल हम लोग बेवेल प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे, रफली बेवेल प्रोट्रैक्टर से आप मेजर करेंगे। वो एंगल मेजर करके अपन उस एंगल को इक्विवेलेंट एंगल गेज कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। जो अभी जो एंगल गेज देखा ना हमने, वैसा एंगल गेज कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। और अब एंगल गेजेस के जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड है एकदम, सरफेस फिनिश अच्छा रहता है, तो उस पे पहले ये ऑटो कॉलिमेटर सेट करेंगे। ये ऑटो कॉलिमेटर ऐसा सेट करेंगे इस पे कि वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम आ सके, मतलब वो जीरो को एडजस्ट करेंगे, मतलब इंसिडेंट रेज की इमेज और रिफ्लेक्टेड रे की जो इमेज है वो दोनों मैच होंगे। ऐसा हम लोग बराबर इसको ऑटो कॉलिमेटर सेट करेंगे एंगल गेज पे, मतलब इस एंगल गेज के ये सरफेस को ये बराबर परपेंडिकुलर आना चाहिए अपना कौन रे, इसका एंगल लेकर का रे बराबर परपेंडिकुलर आना चाहिए, ऐसा हम लोग सेट करेंगे। इसका मतलब ऐसा हो गया कि जीरो रीडिंग
इसका मतलब ये नॉन एंगल, ये एंगल गेज से जो बिल्ड किया है ना हमने, ये नॉन एंगल यानी जीरो रीडिंग। अभी हम ये एंगल गेजेस साइड में करेंगे और उसके जगह वी ब्लॉक लेके आएंगे। तो वी ब्लॉक का जो भी सरफेस है उसका एंगल थोड़ा सा इससे डिफर होगा, तुम्हारे नो एंगल गेजेस से थोड़ा सा डिफर होगा, एकदम थोड़ा। तो वो प्लस माइनस जो उससे क्या होगा, वो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, थोड़ा सा इधर आपके राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड को जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट plus minus, your angle will be, angle of the V block will be known reading, that is angle gauge reading plus or minus that difference shown by angle decker. तो ये कंपैरेटिव मेथड से एंगल देखकर आपको रीडिंग दे देगा अननोन ऑब्जेक्ट का। तो बच्चों समझ में आया ये? फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक्चुअली। इधर ऑप्टिकल रे डायग्राम निकाला है और इधर उसका इंस्ट्रूमेंट निकाला है और इधर उसका एप्लीकेशन निकाला है। तो ये फिगर मैंने आईसी गुप्ता से ली है, वो बहुत बढ़िया बुक है, वो भी इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी में आईसी गुप्ता एज इट इज उन्होंने ऐसा दिया है, तो मैंने वो कलर कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे वो निकाला था व्हेनेवर आई प्रिपेयर दिस स्लाइड। तो बच्चों ये समझा क्या तुमको एंगल डेकर? ओपन योर माइक एंड कम्युनिकेट टू मी। हेलो। हाँ, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो मेरे को पूछो। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि मैं बाद में पूछूंगा, तुम रोक लिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया तो। सो ऑल द 8 स्टूडेंट्स कितने आए अभी? आए क्या, बढ़ गए क्या? 11 बच्चे आ गए। आपको समझ आया बच्चों? आई होप कि समझा होगा, क्योंकि मैं अगर सामने रहता तो मेरे को 110% गारंटी है कि इवन आई कैन से 200% गारंटी, क्योंकि मैं एक्शन करके दिखाता हूँ। वो अभी यहाँ पे नहीं हो सकता है ना, ऑनलाइन में सिखाना बहुत मुश्किल है ऐसे बड़े कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट सिखाना मुश्किल है ये, क्योंकि इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये कंपैरेटिव मेथड है। पहले एंगल गेज इज अ नोन डायमेंशन, इसको हम सेट करेंगे हमारा एंगल डेकर। तो एंगल डेकर 0 को सेट करेगा तो 0 मीन्स नॉन एंगल, नॉन एंगल। और फिर अननोन पे हम लोग उसको सेट करेंगे, तो वो एंगल थोड़ा सा एंगल गेज से अलग रहेगा, तो वो प्लस माइनस साइड में जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। ओके बच्चों? हाँ सर। ठीक है, अभी हम लोग और आगे जाएंगे। ऑप्टिकल बेवल प्रोट्रैक्टर लगता है, और कोई इंस्ट्रूमेंट बचा है? बेवल वर्नियर, बेवल प्रोट्रैक्टर, साइन बार, साइन सेंटर ऑलरेडी यू नो, उस पर अभी सिखाने का कुछ बाकी नहीं रहा। हाँ, ये जो एंगल गेजेस सिखा रहे थे ना हम लोग, तो समझो ये तुमको इसका एंगल मेजर करना है, ये पर्टिकुलर जॉब का एंगल मेजर करना है। तो कैसा करोगे? तो आप यहाँ पे स्लिप गेज यूज करोगे एक साइड में, क्योंकि वो पैरेलल। यहाँ पे वो स्क्वायर प्लेट था ना, अभी दिखाई थी ना, वो एंगल गेज में एक स्क्वायर प्लेट दिखाई थी, वो यूज करेंगे। और यहाँ पे ये एंगल गेजेस यूज करेंगे। सो ये कितना है, 9 3, और इधर एक स्लिप गेज भी यूज किया हमने गैप एडजस्ट करने के लिए। तो ये सरफेस और ये सरफेस का 9 3 12 हो गया, ये 12 एंगल हो गया, और ये 90, मतलब 90 और 12 कितना हो गया, 102। सो ये इसका एंगल है 102, ये पर्टिकुलर लीवर का ऐसा मेजर करते हैं ये। और ये तुम्हारा साइंस, ये साइन टेबल, जो साइन टेबल बोला था ना, ये एक साइड में हिंज, दूसरे साइड में रोलर, तो ऐसा ये लोग हम साइन टेबल से भी मेजर कर सकते हैं। ये देखो एंगल गेज के सेट कैसे रहते हैं पूरे, ये देखो वो 90 ना, अभी जो देखा वो स्क्वायर प्लेट वगैरह। तो ये अलग अलग फिगर मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल दिए हैं, जहां भी अच्छा अच्छा मिला वो मटेरियल सब डाल दिया। ये देखो, ये तुम्हारा एंगल डेकर का ऑप्टिकल रे डायग्राम। एंगल गेज बिल्ड कैसा करने का है, देखो 18 9 1 9 डिग्री, 18 सेकंड है, इसलिए वो दोनों पैरेलल दिख रहे हैं। 18 सेकंड यानी बहुत कम एंगल, 27 डिग्री। उसको ये दोनों साइड सब कॉन्वर्ज एक साइड में रहेंगे ना, तो वो एंगल बिल्ड होता है, मतलब समेशन 27 + 9 + 1, तो मतलब कितना, 7 9 7 16 36 और 1 37 37 डिग्री
9 minute 18 second is the angle between this surface and this surface that is built. और माइनस भी अवेलेबल है कैसा, ये देखो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये उल्टा रखना पड़ेगा, ये कॉन्वर्स साइड इसकी इधर है तो उसकी कॉन्वर्स साइड वो साइड में गई, तो रिजल्टिंग एंगल बिटवीन दिस सरफेस इज दिस बिगर एंगल माइनस स्मॉल एंगल अल्फा माइनस बीटा, और दोनों कॉन्वर्ज्ड है तो दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट which I already explain you in the words. तो ये यहाँ पे दिया है. So ये जो फिगर्स है ना, ये मैंने नेट पे से लिए, थोड़ा फेंट था वो फिगर ओरिजिनली, लेकिन उन्होंने फिगर लेते टाइम ये जो जिसने भी डाला है ना वो आरके जैन से डाला है, ये आरके जैन में और आईसी गुप्ता में है ये ऑलरेडी, तो यू जस्ट गो थ्रू दैट बुक. ये तुम्हारा एंगल डेकर का कंसेप्ट है जो अभी मैंने बताया ना. ये टारगेट वायर वगैरह ये कैसा राइट लेफ्ट घूमता है एज पर रिफ्लेक्शन हो. ये एक है कौन सा, ये क्लिनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है. क्लिनोमीटर का प्रिंसिपल, हाँ ये एक और एक तुम्हारा ये है इंस्ट्रूमेंट क्लिनोमीटर. क्लिनोमीटर का थोड़ा सा मैं साइज कम करना चाहता है, ये ऊपर कहाँ गया है यार, ये इसका साइज कम करेगा ना तुमको थोड़ा मालूम पड़ेगा. हाँ अभी सेंटर लेके आता हूँ. ये क्या हो रहा है यार, और थोड़ा कम करता हूँ, मतलब वन शॉट एकदम दिखना चाहिए ना तुमको. हाँ अभी दिख रहा है ना. हाँ अभी ये एकदम इलिप्टिकल है, इसका मतलब ट्रू शेप नहीं है. ट्रू शेप इसको थोड़ा, हाँ अभी बराबर दिख रहा है ये. हाँ बच्चों अभी देखो, दिस इज नोन एज क्लिनोमीटर. दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज क्लिनोमीटर. क्लिनोमीटर इज ऑल्सो वन ऑफ द एंगुलर मेजरिंग डिवाइसेस. तो ये क्या है मालूम है क्या, ये ऑप्टिकल सिस्टम है. इसमें मतलब क्या, बिवेल प्रोट्रैक्टर और स्पिरिट लेवल एक साथ इनकर्ड है. बिवेल प्रोट्रैक्टर और स्पिरिट लेवल एक साथ इनकर्ड है. अभी ये कैसा वर्क करता है मैं बताता हूँ आपको. इसका ये जो सरफेस है ना व्हाइट का, ये पूरा व्हाइट सरफेस है ना, ये नीचे का जो सरफेस है ये सरफेस, ये वाला, ये अपने फ्लैट, दिस इज यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ फ्लैट सरफेस, नॉट राउंड सरफेस, अपना फ्लैट सरफेस. तो फ्लैट सरफेस जो है जिसका एंगल हमको मेजर करना है उसको हम सरफेस प्लेट पे रखेंगे. सरफेस प्लेट पे रखने के बाद ये जो पोर्शन है वो टॉप सरफेस पे आ जाने के बाद ऐसा टेपर हो जाएगा. टेपर हो जाएगा. टेपर हो जाने के क्या बात क्या होगा, इनिशियली क्या है मालूम है क्या, ये जब बराबर ऐसा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तुम्हारे बेस प्लेट पे है, वो टाइम तुम्हारा स्पिरिट लेवल बराबर सेंटर में बबल दिखा रहा है. सेंटर में बबल दिखा रहा है और तुम्हारा ये रीडिंग भी 0 को है ये. लेकिन जब ये तुम्हारा सरफेस नीचे वाला वो जॉब के ऊपर वाले सरफेस पे आता है, तब ये भी तुम्हारा टेढ़ा हो जाता है ना. ये स्पिरिट लेवल भी आपके मतलब टेपर पोर्शन होने के कारण क्या होता है, तो तुम्हारा बबल हिल जाता है. अभी तुमको बबल सेंटर में लाने के लिए इस डिस्क को घुमाना पड़ेगा. इस डिस्क को ऐसा, ये व्हाइट वाला है ना ये पोर्शन स्पिरिट लेवल अलोंग विद दिस सर्कुलर डिस्क, उसको इस तरह घुमाना पड़ेगा कि फिर से बबल सेंटर में आ जाएगा. तो ये सरफेस जिस एंगल को आपका था उतना ही एंगल से आप जब स्पिरिट लेवल को उल्टा घुमाओगे तभी वो बबल सेंटर में आ जाएगा. मतलब यहाँ पे समझो ये मेरा राइट साइड का एंड ऐसा टेढ़ा हो गया. हाँ ये टेढ़ा हो गया, मतलब अभी मैं यहाँ पे कर नहीं दिखा सकता हूँ, वो सब एक्शन से मालूम पड़ेगा. तो ये वाला जो पोर्शन है, ये दिस इज सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो बी अगर मेरा ऊपर चला गया 10 डिग्री तो मेरा ये जो पोर्शन है ना
ये मेरी स्पिरिट लेवल भी ऐसी 10 डिग्री ऐसी हो जाएगी ना, तो वो स्पिरिट लेवल को मेरे को 10 डिग्री ऐसा यहाँ लाना पड़ेगा, ये इधर वाला पोर्शन ऐसा हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा ताकि मेरा बबल सेंटर में आ जाएगा। वो टाइम ये ऑटोमेटिकली ये ग्रेजुएशन ऐसा यहाँ 10 डिग्री हमको दिखाया जाएगा। तो ये एक्चुअली इसके साथ डिग्री और मिनट का भी एक स्केल रहता है। मिनट का स्केल जो है ना इसका वो अंदर रहेगा ऑप्टिकल में बिल्ट है, वो ऐसा बाहर नहीं दिखता है। मतलब ये जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल भी अंदर दिखता है आपको बड़ा करके, और अंदर एक कनेक्ट होने वाला एक मिनट्स का स्केल भी है। तो इसका 1 मिनट इज अ लिस्ट काउंट विच यू कैन सी फ्रॉम दिस आईपीस। तो आपको आईपीस से देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि कितने दो रीडिंग के बीच में है और कौन से मिनट को वो मैच होता है। If it is between 35 and 36 degree, and for how many minutes it is matching? 35 degree 27 second. Sorry, 35 degree 27 minute. Like that you can measure the angle using this clinometer. Okay. So these are basically various angular measuring devices. ये भी एक है, देखो ये देखो, ये भी एक उसका वर्जन है। ये जो पोर्शन है ना तुम्हारे क्लिनोमीटर का, ये देखो, ये जब एंगल ऐसा ये ऐसा ऐसा टेढ़ा हो जाएगा तो तुम्हारा ये पोर्शन भी ऐसा टेढ़ा हो जाएगा ना, तो उसको बबल शिफ्ट हो जाएगा। तो बबल को फिर से जीरो लाने के लिए आपको बाद में ये जो पोर्शन है सर्कुलर डिस्क ऐसी घुमानी पड़ेगी। तो ये जिस एंगल से ये ऊपर गया है उतना ही एंगल से आपको वो डिस्क घुमानी पड़ेगी ताकि आपको वो एंगल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो दैट इज दिस इज अगेन वन क्लिनोमीटर। तो दिस इज क्लिनोमीटर वर्जन। तो आपने इंस्ट्रूमेंट एंगल मेजरिंग डिवाइसेस कौन से पढ़े, जरा मेरे को अभी तक कौन से पढ़े हो, मेरे को थोड़ा सा आप रिवीजन करो एंड टेल मी which angular measuring you have studied up till now. Please tell me कौन से आपने देखे. You can now contribute your this thing. You can discuss with me. Tell me, I want answer from you. Up till now, how many angular measuring we have studied devices? बोलो बच्चों. Hello. Participative type. हेलो. कॉन्टेक्ट टूट तो नहीं गया? हेलो. कॉन्टेक्ट टूट गया क्या? यस सर, आ रहा है आवाज. आ रहा है ना? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे क्या लगा पहले लेक्चर में एक 10 मिनट ये हुआ था। तो ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि what angular measuring devices we have studied up till now. So I want answers from you guys. So tell one by one. जिसको जो याद आया बोलो, बाकी के मैं बताता हूँ. हाँ, ये नहीं, एक ने लिखा इंदरकर ने साइन बार, तो ऐसा वर्बली बोलो ना तुम लोग. इंदरकर से साइन बार, इट्स करेक्ट. तो साइन बार के साथ वो साइन का पूरा फैमिली बताओ ना. अच्छा, योर माइक इज नॉट वर्किंग. ओह, so you can write here your answers.
whenever you say साइन बार, साइन का पूरा फैमिली मुझे चाहिए, साइन बार, साइन सेंटर एंड साइन टेबल, ये एक ग्रुप हो गया. Then many instruments we have studied. V block, sir. V block is an application. V block is not an instrument. अब अभी हमने कौन सा ये पढ़ा? एंगल डेकर सर. एंगल डेकर, वेरी करेक्ट. अभी हमने एंगल डेकर पढ़ा. उसके पहले क्या पढ़ा था? ऑटो कॉलीमेटर. परफेक्ट, ऑटो कॉलीमेटर. उसके साथ और जोड़ीदार उसका कौन है ऑटो कॉलीमेटर का? हाँ, बेवेल प्रोट्रैक्टर. बेवेल प्रोट्रैक्टर में 3 है, सिंपल बेवेल प्रोट्रैक्टर, ऑप्टिकल बेवेल प्रोट्रैक्टर, यूनिवर्सल बेवेल प्रोट्रैक्टर, पूरा फैमिली. और वो अपने ऑटो कॉलीमेटर का नाम लिया, उसका एक जोड़ीदार कौन है जो स्ट्रेटनेस में भी यूज होता है और वो है वो एंगुलर इंस्ट्रूमेंट में? मैं किसका नाम ले रहा था, वो याद है? ऑटो कॉलीमेटर के साथ साथ वो भी स्ट्रेटनेस मेजरमेंट में यूज होता है ना, स्पिरिट लेवल. स्पिरिट लेवल एंड ऑटो कॉलीमेटर कम्स अंडर एंगुलर मेजरिंग डिवाइसेस. बराबर है क्या नहीं? बट दे आर यूज फॉर स्ट्रेटनेस मेजरमेंट, मतलब वो स्लोप मेजरमेंट करने के लिए. तो ये हमने देखा अभी. और आज हमने क्या देखा? स्लिप गेज जैसा दूसरा कौन है? स्लिप गेज जैसा एंगल गेज. एंगल गेज, करेक्ट. अभी अपना लगभग सब कवर हो गया. और एक लास्ट में हमने देखा वो क्लिनोमीटर. अभी ये नाम याद रखने को आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको वो क्लिनोमीटर, ये मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि वो एकदम लास्ट में सिखाया है. सो क्लिनोमीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेवेल प्रोट्रैक्टर एंड स्पिरिट लेवल incurred in one instrument only, which is used for measuring the angle. तो हम एक बार वो स्लाइड में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा कुछ रह गया क्या अभी हमारे डिस्कशन में. तो बच्चों ने जो नाम लिया तो उसमें कौन सा अपन देखेंगे. मेरे ख्याल से सब बच्चों ने कवर किया अभी. हाँ, ये देखो, इसमें क्योंकि ये पोर्शन है ना, लास्ट टाइम मेट्रोलॉजी में नहीं था. जानबूझ के ये बड़ा हो जाएगा मेट्रोलॉजी, इसलिए हमने स्पेशल मेट्रोलॉजी में रखा था. बट इट इज इसेंशियल टू नो फॉर द वर्कशॉप पीपल, मैकेनिकल इंजीनियर. बेवेल प्रोट्रैक्टर, सिंपल, optical and universal, where you have this acute angle arrangement, this knife edge, minute, this rotary scale, this angle gauges. Okay, that also we covered. And you told ऑटो कॉलीमेटर के साथ साथ दूसरा स्पिरिट लेवल भी, ये अलग से मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी सिखाया है, इसलिए. एंगल डेकर, that today we learn. Then एंगल डेकर, और उसके साथ ये था तुम्हारा साइन बार, साइन सेंटर, साइन टेबल, साइन बार, साइन सेंटर एंड साइन टेबल. तो ये साइन टेबल है नीचे, ये साइन बार, और उसके साथ साइन सेंटर, ये हमने प्रैक्टिकल में पढ़ा. और ये एक जॉब मैंने इसलिए दिखाया, अगर बड़ा जॉब है आपका तो साइन बार उसके ऊपर उल्टा रखेंगे, उसका बैक इस पे ऐसा रखेंगे, और 2 हाइट ये मेजर करेंगे हम लोग यूजिंग डायल गेज. दोनों हाइट का जब डिफरेंस आएगा तो दैट विल बी h. नाउ यू विल यूज द रेगुलर फॉर्मूला. साइन थीटा, दैट इज द एंगल ऑफ द जॉब, इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन l. व्हाट इज दैट l? l is the distance between the 2 rollers, as we saw in the yesterday's discussion. Okay, so this ends our today's session. So I hope everybody who has understood, you told the name and other thing. तो बच्चों समझा आपको? Have you got the concept? So you got that. So I am stopping the recording now. Okay, this will be available with your that Microsoft team.